Good morning, students. Today we will discuss about speed and uniform and non-uniform motion. Speed. Speed is defined as the time rate of change of distance of a body, or we can say it is the total distance traveled by the body in unit time. So the rate of change of distance of a body is known as speed. So speed, the formula of speed is equal to distance traveled divided by time taken. If a body travels a distance s in time t, then its speed v is given by v is equal to s upon t, where v is speed, s is distance, and t is the time taken by that body. So the formula of speed is equal to distance upon time. So v is equal to s upon t. Now the some important characteristics of speed is a scalar quantity. In explaining speed, we require only magnitude. There is no need of direction. So speed is a scalar quantity. स्पीड को एक्सप्लेन करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. स्पीड इज़ आइदर पॉजिटिव और ज़ीरो बट नेवर नेगेटिव. स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव. स्पीड of a vehicle can be measured by an instrument which is called speedometer. Speedometer is used to measure the speed of an object. Speed, the SI unit of speed. The units of speed are centimeter per second in CGS system. CGS system, that is centimeter, gram and second system is called CGS system. CGS system में speed की unit centimeter per second है, और SI सिस्टम में, सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड. सो द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर व्हेन द डिस्टेंस एंड टाइम involved are large. When distance is measured in kilometer and time is taken in hour, then in that condition the unit of speed is kilometer per hour. So these are the important points, that speed is a scalar quantity. Speed cannot be negative, it can be positive or zero, but it cannot be negative. Or the SI unit of speed is meter per second. Next, uniform speed. A body has a uniform speed if it travels equal distances in equal interval of time. If an object covers equal distance in equal, it has a uniform speed when it travels equal distance in equal interval of time, then the speed is said to be uniform speed. Okay. For example, if a car covers 30 km in first 1 hour and also 30 km in second hour, so we can say the speed of the car is uniform. Now similarly, uniform motion. Uniform motion, a body has a uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time. एक ऑब्जेक्ट के द्वारा, एक बॉडी के द्वारा यूनिफॉर्म मोशन कब कहलाता है? जब वो एक निश्चित समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो, तब हम उसको कहेंगे कि वो बॉडी कैसे जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन के साथ जा रही है. दैट बॉडी traveling with uniform motion, if it covers equal distances in equal interval of time, then the motion is said to be uniform. Now variable speed. Variable means changeable, जो change होती रहती है. A body is said to be moving with variable speed if it covers unequal distances in equal intervals of time. अगर एक बॉडी के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, अलग अलग एक निश्चित समय में अलग अलग है, तब हम ये कहेंगे कि वो बॉडी जो है वेरिएबल स्पीड के साथ जा रही है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है. ओके.
इस तरह का मोशन कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. A body has a non-uniform motion if it travels unequal distances in equal interval of time. If a body covers unequal distances in equal interval of time, then the motion is said to be non-uniform. For example, एक कार ने जो है एक आवर में फर्स्ट आवर में 60 किलोमीटर पर आवर की दूरी से जो है उसने डिस्टेंस कवर किया, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया. और नेक्स्ट आवर में अगले आवर में उसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया. तो दोनों आवर्स में उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है, टाइम समान है 1 आवर, लेकिन जो कार के द्वारा जो दूरी तय की गई है वो इक्वल नहीं है. पहले 60 किलोमीटर थी, फिर 50 किलोमीटर. तो जो दूरी तय की जा रही है वो बराबर नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है. टाइम बराबर है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है. सो इस तरह की स्पीड को बोलते हैं वेरिएबल स्पीड, और इस तरह के मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो हम चारों तरफ जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के साथ जा रहा है, कौन नॉन यूनिफॉर्म के साथ जा रहा है, अगर हमें उसका डिस्टेंस और उसके द्वारा कितने समय में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो पता हो. तो नेक्स्ट, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की हम एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं. अगर एक ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई दूरी और उसमें लगा समय अगर अलग अलग है और हमको ये पता करना है कि वो ऑब्जेक्ट किस एवरेज स्पीड से जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, एवरेज उसकी स्पीड क्या है, तो हम वो भी फिज़िक्स में आसानी से निकाल सकते हैं. सो एवरेज स्पीड क्या कहलाता है? द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन to cover this distance. So average speed is equal to total distance traveled divided by total time taken. V average is equal to S total, that is the total distance traveled, divided by T total, that is the total time taken. ठीक है. सो इस फॉर्मूले से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं. अगर हमें ये पता है कि कितनी दूरी टोटल तय की गई है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा और कितना समय उसको लगा है, टोटल टाइम कितना लगा है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, लेट ए कार कवर्स फर्स्ट 25 किलोमीटर इन 1 आवर एंड नेक्स्ट 35 किलोमीटर इन हाफ आवर एंड लास्ट 30 किलोमीटर इन 1 आवर, देन द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू. अगर किसी कार ने फर्स्ट आवर में 25 किलोमीटर तय किया और नेक्स्ट आधे आवर में, हाफ आवर में 35 किलोमीटर की दूरी तय की और लास्ट 1 आवर में 30 किलोमीटर की दूरी तय की, तो बताओ उस कार की एवरेज स्पीड क्या है? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो 25 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 1 आवर प्लस हाफ आवर प्लस 1, देन कितना हो जाएगा ये 65 प्लस 25 90 डिवाइडेड बाई 2, और ये आवर्स टोटल कितने लगे 90 डिवाइडेड बाई 2 आवर्स और 2.5 आवर्स 2.5, 90 डिवाइडेड बाई 2.5 करेंगे इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा. तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं. Now the instantaneous speed. Instantaneous speed, when a body is moving with variable speed, the speed of the body at any instant is called instantaneous speed. अगर कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ जा रही है, उसकी स्पीड लगातार बदल रही है, तो किसी एक इंस्टेंट पे जो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं. So when a body is moving with variable speed, the speed of the body at any instant is called instantaneous speed. Okay, so learn all these terms and do these in your notebook. Thank you, students.